Okay, good morning all. Good morning, sir. Screen is Good there, morning. everyone? Yes, sir. Okay. So today we are going to see how the Morse test is conducted. Okay, very important because the Morse test is very frequently asked in your SPPU exam also, and as well as there are a number of times question in your oral exam also. So definitely you are going to face a number of questions on this Morse test. Now let me clear one thing. Morse test is only possible for multi-cylinder engine. Okay, multi-cylinder, that means at least two cylinder or more. If it is a single cylinder engine, then Morse test is not possible. And this is very common question in your oral exam. So remember, it is only possible for multi-cylinder engine. It doesn't matter whether your engine is petrol engine or diesel engine or CNG, LP, anything, but it must be multi-cylinder. Okay. Now, whatever be the setup we have in our workshop, that engine having three cylinders. So, three-cylinder engine, water-cooled engine. So, we have to supply a cooling water to engine. At the same time, we have to supply a cooling water to calorimeter. So there are two kind of water supply. First water flow is going to engine, and second water flow will is going to calorimeter. Now three cylinders, even though you are saying the identical cylinders are there, but it is never practically possible you get exact same dimension on micro level. So there are little bit differences in property, size. So it is never happen that exact same amount of indicated power will be in all three cylinder. Exact same friction power will be in all cylinder. So there are variations. Now this engine is coupled with a dynamometer. There are number of types of dynamometer, but here we have a hydraulic dynamometer. So hydraulic dynamometer, that means it is applying engine load with the help of hydraulic force. So when we allow water to flow through this hydraulic dynamometer, so dynamometer having one rotating rotors, so water flow rotate that rotor in a opposite direction of engine cylinder, and engine is coupled with this dynamometer. So engine try to rotate this dynamometer along with it. So water flow, whatever be the opposition offer, is directly apply on your engine. That is called engine load. Now in hydraulic dynamometer, whatever be the amount of water we allow to flow, that will be increase your load on engine. That means if I allow suppose 1 liter mass flow rate of water, then definitely it is going to uh, apply some load on engine. But instead of 1 liter per minute or per water flow rate, if I allow 10 liter or 10 kg of water per minute, then definitely as compared to 1 liter, 10 liter will produce a more opposite force. So load will be higher. So this is the overall hydraulic dynamometer. Secondly, there is a fuel tank. Fuel tank having a one cock. Whenever we want to measure a fuel consumption, so we have to stop the fuel supply from main tank. We have to allow fuel supply from burette, measuring burette. So here we can watch how much time is required to consume a particular cc. Suppose 10 cc is there. So we will mark 10 cc and we measure the time, how much second or minute is required to complete that consumption of 10 cc. If you don't want to measure that fuel consumption, then using this cock,
we have to supply fuel from tank because this burette having a very limited fuel quantity. So we have to regularly supply fuel from fuel tank. But whenever we want to measure fuel consumption, that time we have to close this fuel from fuel tank and allow fuel from burette. Also air. So air is allowed to pass through air box. It is a big empty box. There is one opening, that is orifice, and from orifice outside atmospheric air will enter into this box. How it is going to enter? Whenever there is a suction stroke in cylinder, so that negative suction will applied on this air box, and inside the air box there is always a pressure depression. So from outside air will be sucked inside the box. Why we use air box? Very important question. Why we use air box? Because suppose there are 3 cylinders. So at a time 3 cylinder don't have that suction stroke. First cylinder having suction, then after second, then third. So there is a pulsation of suction. So if we don't use this air box, so atmospheric air will suck inside the engine in terms of pulses. To neutralize that pulse impact, we are using this air box. So in air box, almost constant pressure is maintained, and through that, neutralizing that pulses impact, we supply the air. Now, what is a pressure difference in air box and atmosphere? So there is a one manometer, water manometer. And if we observe, so it is almost constant throughout the engine operation. Definitely air box having a lesser pressure and atmospheric pressure having a higher. So there is always a pressure difference in manometer. Now on panel, there are one display which showing engine load in kg. Whatever be the hydraulic dynamometer applying load, that is converted and show in terms of kg on one display, that is engine load W. Then whatever be the engine speed is there, it is shown on display in terms of RPM. There are one temperature knob. If you rotate that knob 1, 2, 3, 4, 5, 6. So whatever be the thermocouple 1, 2, 3, 4. So respective temperature will be displayed. And the most important, for more stress, there are 3 knobs. What is the use of these 3 knobs? When all 3 knobs are on, if it is first, second, third, on, that means your engine having a 3-cylinder and all 3 cylinders producing power. Suppose I press this first cylinder knob, so it means I cut down first cylinder. If I cut down first cylinder, that means only 2 cylinders are working, because first cylinder is cut off. Cut off, that means either I will stop the fuel supply or I will stop the current through spark plug. So there will be no burning. If there is no burning, that means there is no power stroke. So now power stroke happen only in cylinder 2 and 3. So cylinder 1 don't have any power, only cylinder 2 and 3. Now my question is, suppose all 3 cylinders are working and it is producing a power, suppose 20 kilowatt. As I cut off one cylinder, now engine run on only 2 cylinders. So whether output power will reduce, remain same, or increase? Anyone? Reduce? Okay. Reduce. If 3 cylinders are working, it is producing suppose 20 kilowatt. So if I cut out one cylinder, so now engine power will reduce because only 2 cylinders are working. Correct? Now Yes. I have to cut off second cylinder.
So now I cut off second cylinder, but it doesn't mean I cut off the first and second. If I cut off first, so two cylinder are working, 2 and 3. If I cut off second cylinder, that means now 1 and 3 are working. So we are cut off cylinder in turns. In turns means one by one. So first cut off, I will put again in on condition, then second I cut off. Now, when I cut off second cylinder, first cylinder and third cylinder are in working. Correct? So approximately, again two cylinder are working, that means approximately output will be nearby that value. When 2 and 3 are working, so about that much value there should be a power. But never it is come exact, because even though identical cylinders are there, but producing some variations. And in last time, I will cut off third cylinder. When I cut off third cylinder, then first and second are in working condition. Clear up to this? Yes, sir. Now the most important point, how we conduct the experiment procedure. This is also many times it is asked in your oral exam. Now, suppose you are going to conduct the experiment. There is a petrol engine. So when you reach to your engine setup, forget about the precautions. Precaution, that means we have to check the oil level, lubrication oil, fuel tank, and water supply and all these. That is the regular practice. We have to do that all. Okay. So actual procedure is that when we start our engine, then with the help of this knob, this circular knob, we have to load the hydraulic diameter to full load condition. Suppose hydraulic dynamometer having a full load condition, suppose 20 kg. So 20 kg, it means I have to allow more water to flow through this hydraulic dynamometer. If more water flowing through this hydraulic dynamometer, so that more water will produce more hydraulic friction, and that friction ultimately applying on engine shaft, because that friction oppose engine to rotate. So suppose this is the maximum condition. So when I start my engine, petrol engine, then with the help of this hydraulic wheels, I have to open the maximum water supply, so engine load will be maximum. Suppose it is 20 kg. Now, when I load the engine, what happens to speed? Speed will reduce, increase, or remain same? Anyone? If I increase the load on engine, so engine speed will reduce, increase, or remain same? Reduce, sir. Will reduce. Sir, will reduce. So as I am increasing engine load, your speed is decreasing. Now there is a one knob, accelerator knob, because there is not an accelerator pedal. So there is a one rotating knob, just like a dimmerstat. With the help of that rotating knob, we can change the acceleration position, so our speed can be gained. So my engine load is 20 kg. Due to that, engine speed is reduced. Now I am using the accelerating knob and increase the speed. Suppose I want to check the all parameters on 1500 RPM. So when I apply 20 kg load with the help of hydraulic diameter, and my engine speed is suppose 1000, so with the help of accelerator knob, I increase the acceleration and maintain its speed, suppose 1500 RPM. So I maintain the speed 1500 RPM. Load is a 20 kg full load, and with the help of accelerating knob, I maintain 1500 kg, 100 RPM. Now all three cylinders are working. Engine load is 20 kg and RPM is 1500. At that time, I note down all these readings. This 20 kg will be displayed here, engine load condition. RPM will display here. Three cylinders are working.
If I require to measure the fuel consumption, at that time I will apply this cock and allow only fuel from burette, and I will mark this to this is suppose 10 cc, so I will use a stopwatch and measure how much time is required to consume this much level of fuel. Then after I will put on the cock so that fuel supply will be from tank. I will measure the manometer reading, so I will come to know how much is the air flow is there. Now the next question. Now we know how much is load and how much is RPM, how much is fuel consumption, how much is a manometer reading. Now what I am doing, I am closing first cylinder knob. That's means closing first cylinder knob. It means I am cut down that particular cylinder. So if I cut off first cylinder, now only 2 and 3 cylinders are working. And as you said, if only 2 cylinders are working, so your RPM will reduce. Correct? Carefully listen. 3 cylinder are working, my load is 20 kg and RPM is 1500. If I cut off first cylinder, now only 2 cylinder are working, cylinder 2 and 3. So power will be less, so my speed will be reduced. Suppose my speed is reduced, suppose 1200. Now don't use accelerator knob. Only once we have to use accelerator knob to set our speed when all cylinders are working. Now when first cylinder cut off, only 2 cylinders are working, definitely it is going to reduce the power. If the power is reduced, so speed will decrease. Now I have to reduce the load of engine. If I reduce the load of engine, so speed increases. So engine running at 20 kg. Now I am rotating this hydraulic dynamometer wheel in opposite direction. Now load will be 18 kg, 16, 17. Likewise, I am reducing it. So 20, so I reduce 19. I observe as soon as first cylinder cut off, my speed is 1200. Then after I reduce the load, 19, speed is increased 1250. Then reduce 18, speed is suppose 1300. Reducing load to suppose 16 kg, speed is suppose 1400. Then reducing load, suppose 14 kg, then speed again come back to 1500. That means when I cut off one cylinder, I have to maintain the same speed by reducing engine load, not by using accelerator. Got it? This is the main soul of conducting mode space. यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। सो फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। यही मेन आपका एक्सपेरिमेंट रहेगा जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आए। फर्स्ट टाइम हमने तीनों सिलेंडर ऑन रखे, इंजन को रन किया और डायनोमीटर को इस पोजीशन पे रखा कि मैक्सिमम वाटर फ्लो हो। सो मैक्सिमम फोर्स हाइड्रोलिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गया, जिससे हमने इंजन को मैक्सिमम लोड कंडीशन रखा है। और उस मैक्सिमम लोड कंडीशन के बाद हमने एक्सेलरेटर नॉब को यूज किया टू मेंटेन सम पर्टिकुलर स्पीड। उसके बाद हमने नोट डाउन किया इंजन लोड कितना था, स्पीड कितना था, फ्यूल कंजम्पशन कितना था, एयर बॉक्स में से मैनोमीटर रीडिंग कितना है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट सिलेंडर को कट ऑफ किया। कट ऑफ किया मतलब वहां स्पार्क प्लग कट हो गया। अब स्पार्क प्लग ही नहीं रहेगा तो वहां पे आपको पावर नहीं मिलेगा। अब दो ही सिलेंडर वर्क कर रहे, दो जैसे सिलेंडर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली 20 केजी के वजह से स्पीड कम हो गया। अब जो स्पीड कम हो गया उसे हमें एक्सेलरेटर से बढ़ाना नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, लोड को कम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोड कम करते जाएंगे स्पीड बढ़ते जाएगा और हमें उस पोजीशन पे लोड को लाना है ताकि हमारी प्रीवियस एक्चुअल इनिशियल जो स्पीड थी वो फिर से गेन हो जाए।
अब जिस लोड पे ये स्पीड फिर से गेन हो गई वो नोट डाउन करना है। सपोज अब ये 14 केजी पे इंजन स्पीड फिर से 1500 आ गया, सो माय नेक्स्ट रीडिंग लोड इज 14 केजी, स्पीड इज 1500 व्हेन टू सिलेंडर आर वर्किंग। उस केस में फिर से मैं इस कॉक को ब्यूरेट की तरफ ऑन कर दूंगा, सो ब्यूरेट से फ्यूल जाएगा। अब दो ही सिलेंडर बर्न कर रहे फ्यूल, सो फ्यूल कंजम्पशन रेट गिन दूंगा, मैनोमीटर रीडिंग गिन दूंगा। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट, अब मैं सिलेंडर 1 को ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद डेफिनेटली 5 या 10 मिनट्स इसको रन होने देना है ताकि ये फिर से अपनी ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन पे आ जाए। नेक्स्ट टाइम मैं सेकंड सिलेंडर को कट ऑफ करता हूं। अब फर्स्ट और थर्ड सिलेंडर ऑन। तो जैसे सेकंड सिलेंडर कट ऑफ करूंगा तो फर्स्ट और थर्ड सिलेंडर ऑन है, सो डेफिनेटली इसकी स्पीड फिर से रिड्यूस हो जाएंगी। अब मुझे लोड को बहुत ज्यादा वैरी नहीं करना है क्योंकि दो सिलेंडर जब आप ऑफ करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 14 केजी इतना लोड दिखाता है, सो इट विल बी नियर बाय 14 पॉइंट समथिंग या 13 पॉइंट समथिंग। तो अब आपको सिर्फ थोड़ा सा ही माइक्रो लेवल पे एडजस्ट करना है ताकि स्पीड एग्जैक्ट फिर से 1500 आ जाए। अब सपोज सेकंड सिलेंडर ऑफ किया तब मेरा इंजन लोड था 14.2 और स्पीड आ गया 1500, तो मैंने इंजन लोड मार्क कर लिया, 1500 मार्क कर लिया, फिर से फ्यूल कंजम्पशन टाइम नोट डाउन कर लिया, मैनोमीटर रीडिंग, और लास्ट में थर्ड सिलेंडर कट ऑफ किया, फर्स्ट और सेकंड ऑन है। फिर मैंने स्पीड चेक किया, स्पीड में जो भी वेरिएशन है उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने लोड को एडजस्ट किया। सपोज इस टाइम 13.8 केजी लोड दिखा रहा है जिसपे 1500 आ गया, सो आई विल नोट डाउन ऑल दीज रीडिंग्स। वंस आई कंप्लीट ऑल दीज एक्सरसाइज, अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओरल में पूछा जाता है, इस पूरे मोर्स टेस्ट इज ओवर नाउ। नाउ वी हैव टू reduce the load, zero condition, reduce the acceleration position to zero condition, then switch off our engine. But even though engine is switch off, we have to allow cooling water for at least 20 or 30 minutes, so that whatever भी तो जो इंजन आपका गर्म हो चुका है उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए कूलिंग ऑन रखते हैं। लेकिन डायनोमीटर का वाटर बंद कर देंगे, कूलिंग वाटर सिर्फ चालू रखेंगे 30 मिनट्स तक। सो ये आपकी मोर्स टेस्ट कंप्लीट होगी। नाउ in complete Morse test, what you measure, this is very important question। और बहुत सारे बच्चे जाके बोल देते हैं हमने ब्रेक पावर मेजर किया, मोर्स टेस्ट में हमने फ्रिक्शन पावर मेजर किया। नो, दैट इज रॉन्ग। हमने क्या क्या मेजर किया? इंजन लोड, इंजन स्पीड, मैनोमीटर रीडिंग और फ्यूल कंजम्पशन। इसके अलावा हमने कुछ भी मेजर नहीं किया। सो वी आर ओनली मेजरिंग लोड, स्पीड, मैनोमीटर रीडिंग एंड फ्यूल कंजम्पशन। जो आप बोलते हो कि हमने ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर, इंडिकेटर पावर मेजर किया, तो वो हमने मेजर नहीं किया। हम इन रीडिंग्स से लोड पे लेके जा रहे हैं, तीनों सिलेंडर ऑन है, एक्सेलरेटर नॉब से एक पर्टिकुलर स्पीड डिसाइड कर लिया, अब उस पर रीडिंग्स ले लिए, फिर वन बाय वन सिलेंडर कट ऑफ कर रहे, फिर से स्पीड मेंटेन करने के लिए हम लोड को रिड्यूस कर रहे। जैसी स्पीड मेंटेन हो जाएगी करस्पॉन्डिंग रीडिंग्स फिर से नोट डाउन कर रहे। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि मोर्स टेस्ट इज ओनली पॉसिबल फॉर मल्टी सिलेंडर। सपोज सिंगल सिलेंडर होता तो जैसे मैं इंजन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ करता तो इंजन बंद, ऑन करता तो इंजन शुरू। सो इसलिए मोर्स टेस्ट इज ओनली पॉसिबल फॉर मल्टी सिलेंडर। Now this is the actual video. So ये जो दिख रहा है, दिस इज अ हाइड्रोलिक डायनोमीटर। ये जो केसिंग है पूरी, दिस इज हाइड्रोलिक डायनोमीटर केसिंग। अब यहाँ जो आप चेन ड्राइव से देख रहे हो, तो जैसे मैं इस व्हील को घुमाता हूं तो यहाँ जो आपको टूथ व्हील दिख रहा है ना, ये या तो अंदर जाएगा या बाहर आएगा।
जैसे ये बाहर आएगा दैट्स मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो को अलाउ कर रहा है, अंदर जाएगा तो फ्लो को मिनिमाइज कर रहा है। अब इस रॉड से ये इंजन को कपल है फ्लाई व्हील को, तो दैट्स मीन जो भी अपोजिशन आएगा वो इंजन पे आएगा। अब इंजन कितने सिलेंडर का है तो स्पार्क प्लग गिनिए, 1 2 3, या फिर आप इनटेक मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से भी गिन सकते हो। यहां से एयर अंदर आएगा, बर्न होगा, बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट पाइप से बाहर जाएगा, पाइप से हीट ट्रांसफर ना हो इसलिए इंसुलेट किया। और दिस इज द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इनलेट पे एक थर्मोकपल होता है, आउटलेट पे एक थर्मोकपल होता है, और ये एग्जॉस्ट पाइप। तो हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन करना है, उसके बाद वाटर कनेक्शन ऑन करना है। वाटर कनेक्शन दो चीजों के लिए जाएगा, एक इंजन के लिए जाएगा, इंजन कूलिंग के लिए, दूसरा जाएगा कैलोरीमीटर। और हमारा डायनोमीटर हाइड्रोलिक डायनोमीटर है, तो थर्ड लाइन रहेगी यहाँ पे जो हाइड्रोलिक डायनोमीटर के लिए जाएगा। इसी फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ, जब मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ तो फर्स्ट सिलेंडर कट होता है, सेकंड सिलेंडर कट ऑफ, थर्ड सिलेंडर कट ऑफ। ये है एक्सेलरेटर नॉब। जैसे मैं इसको बढ़ा के रखूंगा तो स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे आपको टेम्परेचर्स दिखेंगे, जो भी इंजन पे लोड आया वो यहाँ केजी पे, और ऊपर का ये आरपीएम शो है। यहाँ पे वाटर मैनोमीटर एंड फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन के वक्त आपको सिर्फ ब्यूरेट या टैंक। अब ये वाटर फ्लो इंजन के लिए और ये कैलोरीमीटर के लिए। यू कैन एडजस्ट द फ्लो। इस रोटामीटर के पीछे साइड में व्हील्स गिवन है, उस व्हील को रोटेट करके आप वाटर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। इंजन सेटअप ऑन किया है। अब विद द हेल्प ऑफ की जैसे आप ऑन करोगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको इंजन लोड मैक्सिमम करना है हाइड्रोलिक डायनामोमीटर से, और पर्टिकुलर स्पीड सेट करना है एक्सेलरेटर के यूज करके। तो एक्सेलरेटर यूज करो और एक पर्टिकुलर स्पीड सेट करो जिसपे आपको फ्रिक्शन पावर गिनना है। लेकिन जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये कभी भी स्टेडी नहीं रहता है। 2300 ऐसा स्टेडी नहीं रहेगा, ये फ्लक्चुएट होते रहेगा। इवन दो केजी, ये केजी भी 6.0 नहीं आएगा, 6.12 या फिर 5.89, इसमें ये फ्लक्चुएट होते रहेगा। तो आप कभी भी कांस्टेंट रीडिंग नहीं ले पाते हो, ये ऐसे चेंज होते रहेगा। तो आपको मीन वैल्यू लेना है, जो बार बार डिस्प्ले पे आ रहा है, तो वो मीन वैल्यू लेना। तो यहां तक समझ में आ गया। अब Yes, हम sir. मोर्स देखते हैं कि मोर्स टेस्ट में आपको लिखना क्या है। तो लास्ट 15 मिनट बचा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और ये राइटअप आपको भेज दूंगा। तो ये आपका राइटअप है जो मैं अभी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सो टाइटल है मोर्स टेस्ट ऑन पेट्रोल इंजन। क्यों पेट्रोल इंजन, इसका भी रीजन है, एक्स्ट्रा में कभी कभी पूछता है। तो जो हमारे पास डीजल इंजन है वो सिंगल सिलेंडर डीजल है, इसलिए वहां पे मोर्स टेस्ट नहीं हो सकता। पेट्रोल इंजन हमारा 3 सिलेंडर है तो वहां मोर्स टेस्ट हो सकता है। अब एम क्या था मोर्स टेस्ट कंडक्ट करने का? सो इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी गिनना है उसके लिए। अब ये बेसिक थ्योरी है। मोर्स टेस्ट जब मैंने पढ़ाया था 4th यूनिट में, तो वहां पे हमने देखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ 3 सिलेंडर है, बेसिक इक्वेशन क्या है? इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शन पावर। अब अगर 3 सिलेंडर वर्किंग है तो 3 सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर होगा, तो IP1 IP2 IP3 इज इक्वल टू, अब तीनों सिलेंडर अगर वर्क कर रहे तो तीनों सिलेंडर का अपना अपना ब्रेक पावर BP1 BP2 BP3, और हर सिलेंडर जब मूव करता है तो उसका फ्रिक्शन रहेगा। जब तीनों सिलेंडर रन हो रहे हैं तो तीनों सिलेंडर का इंडिविजुअल ब्रेक पावर अगर आप ऐड करते हो तो इट इज नथिंग बट ब्रेक पावर ऑफ होल इंजन, सो BP ऑल। अब बीपी ऑल हमने क्यों सेपरेटली लिया है? क्योंकि जब हम इंजन रन करते हैं और तीनों सिलेंडर ऑन है तो हमें डायरेक्टली बीपी ऑल सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 1 सिलेंडर में कट ऑफ करता हूं, रिमेंबर व्हेन आई एम कट ऑफ 1 सिलेंडर इट मींस 2 सिलेंडर रन हो रहे। तो जब फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ किया तो
सेकंड और थर्ड सिलेंडर रन हो रहा है, तो सेकंड सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर होगा, थर्ड सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर होगा, फर्स्ट सिलेंडर में हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कट कर दिया। अब जब फर्स्ट सेकंड और थर्ड सिलेंडर में इंडिकेटेड पावर होगा तो ब्रेक पावर भी वहीं से मिलेगा हमें, क्योंकि फर्स्ट सिलेंडर में फ्यूल ही बर्न नहीं हो रहा तो कोई आउटपुट भी नहीं है। सो ब्रेक पावर ऑफ सेकंड सिलेंडर, ब्रेक पावर ऑफ थर्ड सिलेंडर। लेकिन फ्रिक्शन तीनों में होगा क्योंकि एक ही क्रैंक शाफ्ट को लगा हुआ है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दो सिलेंडर के पिस्टन ऊपर नीचे जा रहे हो और तीसरा वाला एक ही जगह रुक गया, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो तीसरे सिलेंडर का भी घूमना ही है। सो फ्रिक्शन तो तीनों सिलेंडर में हो रहा है, सिर्फ पावर हमें सेकंड थर्ड में मिल रहा है। सो ये BP2 प्लस BP3, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ब्रेक पावर व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ। इसका ही मीनिंग है कि जब फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ किया तो सिर्फ 2 और 3 से मिल रहा है। सो IP2 प्लस IP3 इज इक्वल्स टू BP व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ प्लस फ्रिक्शन पावर ऑफ ऑल 3 सिलेंडर। अब जब तीनों सिलेंडर रन हो रहे थे तो IP1 2 3 था, उसमें से जब एक सिलेंडर कट ऑफ किया, ये वाला इक्वेशन माइनस कर रहे, तो IP1 2 3 माइनस IP2 and 3, तो यहाँ बचेगा क्या? ये IP2 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा IP1। अब BP ऑल माइनस BP सिलेंडर 1 कट ऑफ, ये बच गया। और फ्रिक्शन पावर तो तीनों है तो वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इंडिकेटेड पावर व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ कंडीशन में IP1, तो IP1 क्या है? इंडिकेटेड पावर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर ऑफ ऑल सिलेंडर वर्किंग माइनस ब्रेक पावर व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ। अब इसी हिसाब से अगर आप सिमिलरली जाओगे तो IP2 अगर निकालना है, इंडिकेटेड पावर ऑफ सेकंड सिलेंडर, सो ब्रेक पावर ऑफ ऑल सिलेंडर माइनस ब्रेक पावर व्हेन सेकंड सिलेंडर कट ऑफ। सेम वे इंडिकेटेड पावर ऑफ थर्ड सिलेंडर इज ब्रेक पावर ऑल सिलेंडर माइनस ब्रेक पावर व्हेन थर्ड सिलेंडर कट ऑफ। दैट्स मीन फर्स्ट और सेकंड चल रहा है। अब अगर आपके पास तीनों इंडिकेटेड पावर आ गए तीनों सिलेंडर के, तो अगर उनकी एडिशन करोगे तो इट इज इंडिकेटेड पावर ऑफ ऑल सिलेंडर। ब्रेक पावर ऑफ ऑल सिलेंडर हमारे पास है, इंडिकेटेड पावर ऑफ ऑल सिलेंडर अगर मिल जाता है, तो फ्रिक्शन पावर निकालना है तो फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर ऑल माइनस ब्रेक पावर। फ्रिक्शन पावर हम हर एक सिलेंडर का नहीं निकाल रहे, फ्रिक्शन पावर हम पूरे इंजन का निकाल रहे। अब इंजन में 3 सिलेंडर है तो फ्रिक्शन पावर ऑफ दैट होल 3 सिलेंडर कंबाइंड इज IP ऑल माइनस BP। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की डायग्राम है। इंजन स्पेसिफिकेशन, नंबर ऑफ सिलेंडर 3, स्ट्रोक 4 है, फ्यूल टाइप पेट्रोल है, रेटेड पावर कितना है तो 27.6। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जिस इंजन पे आपने परफॉर्म किया उसकी पावर रेटिंग क्या है, 27.6 किलोवाट, और मैक्सिमम स्पीड 5000 आरपीएम है। बहुत बार स्ट्रोम बोलते नहीं हमने 6000 आरपीएम पे टेस्टिंग किया, लेकिन आपकी इंजन का ही मैक्सिमम आरपीएम 5000 है। सिलेंडर डायमीटर इज गिवन, stroke length is given, connecting rod length is given, compression ratio 9.2, ये भी याद रखना है क्योंकि फिक्स compression ratio है। ओरिफिस डायमीटर, एयर बॉक्स में जो एयर ओरिफिस डायमीटर दिया है वो 35, डायनोमीटर आर्म लेंथ 210, ये हमें लगने वाला है जब हम टॉर्क निकालते। प्रोसीजर मैंने जब डायग्राम एक्सप्लेन किया तो प्रोसीजर बता ही दिया था। अब ऑब्जर्वेशन में फ्यूल डेंसिटी 740, अब हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल लाओगे तो अलग अलग डेंसिटी का देगा, तो हम एक एवरेज ले रहे हैं कि 740 डेंसिटी है। कैलोरीफिक वैल्यू भी अलग अलग आएगा, बट एवरेजली वी आर टेकिंग 44,000। अब कूलिंग वाटर फ्लो रेट टू इंजन 360 LPH, जो मैंने रीडिंग दिया था उस टाइम ये रखा था, और कैलोरीमीटर के लिए 100। उसके बाद रूम टेम्परेचर, तो अभी जो रूम टेम्परेचर चल रहा है पूना में दैट इज 34। अब रीडिंग्स लेते समय हमने क्या किया है, जब ऑल सिलेंडर वर्क कर रहे थे तो इंजन स्पीड कितना था और इंजन लोड कितना था। जब फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ किया तो इंजन स्पीड कितना, तो हमने बाय डिफॉल्ट स्पीड उतना ही मेंटेन किया है बाय रिड्यूसिंग लोड, तो हर इसमें स्पीड उतना ही आएगा, इंजन लोड कम हो जाएगा क्योंकि 3 सिलेंडर के वक्त इंजन लोड अलग था, फिर हमने इंजन लोड को कम किया। सो जब सेकंड कट ऑफ किया स्पीड और इंजन लोड, थर्ड कट ऑफ किया स्पीड इंजन लोड।
अब कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे। एट द बिगिनिंग हमने तीनों सिलेंडर ऑन रखे थे, तो जैसे तीनों सिलेंडर ऑन रखे, फुल लोड कंडीशन किया और एक्सेलरेटर से एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन की, उस टाइम हमने W गिन लिया था कि कितना लोड है। सो व्हेन ऑल सिलेंडर वर्किंग, टॉर्क कितना आएगा, तो W मल्टीप्लाई बाय 9.81, क्योंकि जो लोड दिखा रहा है वो केजी में, तो उसको न्यूटन में किया, फोर्स में, मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट डिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स ये जो आपने ऑब्जर्वेशन में दिया था 210 mm, तो इसको मीटर में करेंगे 0.21, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा व्हेन ऑल सिलेंडर वर्किंग। व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ, क्या टॉर्क था, तो जब फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ हुआ तो जो लोड दिखाया वो मल्टीप्लाई बाय आर करोगे, डेफिनेटली फोर्स में कन्वर्ट करना है। सो आपको फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ होने के बाद कितना टॉर्क आ रहा है वो मिल जाएगा। फिर सेकंड सिलेंडर कट ऑफ किया, तो सेकंड सिलेंडर कट ऑफ करते समय जो लोड था उसको लो, तो सेकंड सिलेंडर कट ऑफ का टॉर्क मिलेगा। देन थर्ड सिलेंडर कट ऑफ टॉर्क। अगर आपको टॉर्क पता है तो ब्रेक पावर निकाल सकते हो 2 पाई एन टी। सो ब्रेक पावर भी हमें निकालना है, तो सारे निकालना है। सो व्हेन ब्रेक पावर ऑल सिलेंडर वर्किंग 2 पाई एन टी ऑल, जब ऑल सिलेंडर वर्क कर रहे थे तब टॉर्क कितना था, डिवाइडेड बाय 60, तो 1 किलोवाट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बाकी के कन्वर्जन दिए नहीं, आपको यूज करना है 2 पाई एन टी। अगर ये आरपीएम में दिया है तो डिवाइडेड बाय 60, तो आरपीएस हो गया। अब ये सारे वैल्यूज वैट में दे रहे, तो आपको कन्वर्ट करना है किलोवाट में, तो अगेन डिवाइडेड बाय 1000, तो किलोवाट। लाइकवाइज यूनिट आपको मैनेज करना। ब्रेक पावर व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ, तो 2 पाई एन टी 1। तो अब आपको फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ वाला टॉर्क रखना है, तो आपको ब्रेक पावर व्हेन फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ मिलेगा, सेकंड सिलेंडर कट ऑफ, थर्ड सिलेंडर कट ऑफ। अब इंडिकेटेड पावर जैसे हमने प्रैक्टिकल के थियरी पार्ट में देखा था, IP1 इज BP ऑल माइनस BP1 कट ऑफ। सो आपको IP1 मिल जाएगा, इंडिकेटेड पावर फर्स्ट सिलेंडर। सेम इंडिकेटेड पावर सेकंड सिलेंडर, इंडिकेटेड पावर थर्ड सिलेंडर। जब तीनों सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर मिलेगा, ऐड करो तो इट इज इंडिकेटेड पावर ऑफ ऑल सिलेंडर। अब ऑल सिलेंडर के बाद फ्रिक्शन पावर निकालना है, तो फ्रिक्शन पावर इज इंडिकेटेड पावर ऑल, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ब्रेक पावर ऑल, तो आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन पावर। सो मोर्स टेस्ट क्यों कंडक्ट करते हैं? फर्स्ट जो मेन टास्क है उसका, टू आइडेंटिफाई फ्रिक्शन पावर। ओके, लेकिन क्या आप इंडिकेटेड पावर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो? कर सकते हो। आईपी, अगर किसी को फ्रिक्शन पावर नहीं निकालना, लेकिन किसी मल्टी सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना, सो मोर टेस्ट से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इवन दो आप किसी इंजन का ब्रेक पावर अगर निकालना है तब भी आप मोर्स टेस्ट यूज कर सकते हो। सो इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, फ्रिक्शन पावर भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मेनली इट इज डिजाइन ओनली फॉर फ्रिक्शन पावर। अब मैकेनिकल इफिशियंसी, सो मैकेनिकल इफिशियंसी दैट मींस ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर, तो दोनों वैल्यूज है तो आप यहां रख दो, तो मैकेनिकल इफिशियंसी ये आपका रिजल्ट टेबल है। तो व्हेन ऑल सिलेंडर वर्किंग, इंजन स्पीड कितनी थी, इंजन लोड कितना था, इंजन टॉर्क जो हमने आपने कैलकुलेट किया सैंपल में, फिर ब्रेक पावर कितना हो गया उसकी वजह से, इंडिकेटेड पावर कितना है, फर्स्ट सिलेंडर कट ऑफ, सारे रीडिंग्स। अब ये सब मिला के जो आपने फ्रिक्शन पावर निकाला इंजन का, वो यहाँ आएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब कंक्लूजन में, द मोर्स टेस्ट कंसिस्ट of running the engine against the dynamometer at a particular speed, cutting out each cylinder in turn and noting the fall in brake power. तो जब भी आप सिलेंडर